We are starting the pharmacokinetics. Okay, now concentrate on the diagram. You are administrating a drug. I am taking the oral route because it is most common route. Okay, so you have administered a drug. Let's say that drug is A. So you administered this drug. Now after coming to stomach or to intestine, it will get what? It will get absorbed into what? Into blood vessel. So this is what? This is the absorption. If it is acidic, it will be absorbed through what? Stomach. And if it is basic, it will be absorbed through what? Your intestine. So this is what? This will be your absorption. After absorption, it will go to what? It will go to its site of action. This is what? This is site of action. दैट साइट ऑफ एक्शन डिपेंड्स अपॉन कि अगर आपको हेडेक हो रहा तो आपका साइट ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा? ब्रेन हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट? दिस इज साइट ऑफ एक्शन. नाउ वंस इट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, that is the part that is mechanism of action, that is the mechanism of action, that is the part of your pharmacodynamics. Okay, we will take it later. Now once it have shown its action, it will what? It will again come to blood. After that it will get excreted through kidney. Mostly drug excreted through kidney, but feces से हो सकता है, sweat से हो सकता है, bile से हो सकता है. So we will मतलब ज़्यादा से ज़्यादा kidney से होता है. That's why I am taking here kidney. Okay, now excretion will be there, but you already know कि non-polar drugs जो है वो excrete नहीं होता. So what you non-polar drugs, it doesn't excrete. What you want that non-polar drugs to get converted into polar first. So again the step, that is metabolism, which happens in liver. So here we have to consider what? Metabolism. Here the non-polar drugs will convert it into what? Polar drugs, so that it will what? Excrete out of the body. Again after coming to blood, it will what? Excrete out of the body. Now concentrate here. This is what? This is absorption. Now after absorption, it's showing its action at what? Site of action. And this is what? This is distribution. After distribution, the non-polar drugs converting into what? Polar drugs. And this is what? This is biotransformation. Alright, it is what? It is metabolism. आफ्टर मेटाबॉलिज्म यू वोंट मतलब आप उस ड्रग को बॉडी से एक्सक्रीट करना चाहोगे. सो व्हाट विल बी? दैट विल बी एक्सक्रीशन, द नेक्स्ट स्टेप. तो ये चारों स्टेप हमें किसके अंडर पढ़नी है? फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर. वन बाय वन आई विल बी कवरिंग ऑल दिस 4 स्टेप्स. ओके, so what is pharmacokinetics? What your body does to the drug. This is what your body is doing to the drugs, and that's what the pharmacokinetics is all about. Okay, now the intensity of response is what? It is related to what? It is related, let me change the pen. Okay, the intensity of response is what? It is related to what? Concentration of drug. मतलब अगर आपने 500 mg की पैरासीटामोल ली है और आपकी साइट ऑफ एक्शन पे मतलब यहाँ पे वो बस 10 mg की बची है, विल इट शो इट्स एक्शन इफेक्टिवली? बेसिकली नॉट ना. तो दैट्स व्हाट फार्माकोकाइनेटिक्स आपको बताएगा कि व्हाट विल बी द इंटेंसिटी. अगर आप किस कॉन्सेंट्रेशन में ड्रग लोगे तो क्या इंटेंसिटी उस चीज़ की रहेगी. ओके, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या क्या डिटरमाइन करता है? तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. इफ़ यू आर गिविंग एनी ड्रग, ओके, जिसका ओरल एब्जॉर्प्शन कम है, सो आप दूसरा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए यूज़ करोगे. अगर उसका ओरल एब्जॉर्प्शन कम है तो आप उसको आईवी से एडमिनिस्ट्रेट करोगे, किसी और रूट से एडमिनिस्ट्रेट करोगे. तो ये आपको कौन आइडिया देगा? आपको ये फार्माकोकाइनेटिक्स में इस चीज़ का आपको क्या रहेगा? आइडिया रहेगा. सब जो पैरासीटामोल है जो हम 4 टाइम्स फॉर एन एडल्ट के लिए हम 4 टाइम्स अ डे दे सकते हैं. ओके, तो अगर ये डोज जो है वो कितने टाइम के बाद आपको रिपीट करना है, ये सारी चीज़ें किस चीज़ में आ जाएगी? फार्माकोकाइनेटिक्स में.
क्योंकि आपको तब उस ड्रग्स का क्या पता रहेगा कि उसका एब्जॉर्प्शन क्या है, वो कितने टाइम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसका एक्सक्रीशन कब होता है। अगर ड्रग एक्सक्रीट हो गया बॉडी से तो आप क्या करोगे, उस ड्रग को उस टाइम के बाद क्या करोगे, रिपीट करोगे। इसलिए आपको क्या पढ़ना है, फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ना है। नाउ फार्माकोकाइनेटिक्स के जो 4 पार्ट है वो कौन से हो गए, एब्जॉर्प्शन, आई हैव शोन यू हियर, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बायोट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन। हम ये चारों पार्ट जो है वो सेपरेटली अच्छे से लेंगे। नाउ व्हाट एग्जैक्टली गोइंग ऑन हियर, कि आपने ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट किया, आई एम टेकिंग हियर ओरल रूट, एडमिनिस्ट्रेट किया, यहाँ से उसने क्या की, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, ओके, तो ब्लड में आया। यहाँ से उसने स्टमक की सेल वॉल, लेट्स एज्यूम कि ड्रग एसिडिक है तो यहाँ से एब्जॉर्ब हुआ है, तो ये क्या किया उसने, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया। हियर अगेन इट इज़ व्हाट, क्रॉसिंग सेल मेम्ब्रेन, अगेन हियर इट इज़ क्रॉसिंग सेल मेम्ब्रेन, सो और हियर ऑल्सो ओके। तो हो क्या रहा है कि इट क्रॉसिंग दिस सेल मेम्ब्रेन फॉर मल्टीपल टाइम्स। हाउ डज इट क्रॉस दिस सेल मेम्ब्रेन फॉर मल्टीपल टाइम्स, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग। बिफोर स्टार्टिंग ट्रांसपोर्टेशन, ये एक डायग्राम देख लो के डी त्रिपाठी की, ओके। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट किया है, ओके। अब ये कहाँ एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, तो दिस इज व्हाट, एब्जॉर्प्शन। आफ्टर एब्जॉर्बिंग इनटू ब्लड, ये आप अपनी क्या गया, साइट ऑफ एक्शन पे गया, दैट इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन इज। आफ्टर शोइंग इट एक्शन अगेन इट विल कम बैक इनटू व्हाट, ब्लड। आफ्टर कमिंग बैक इनटू ब्लड, अगेन ये क्या हुआ कि अगेन ये क्या हुआ, बायो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इसका, दैट विल बी इनटू लीवर। आफ्टर बायो ट्रांसफॉर्मेशन इसका फाइनली क्या हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। एक्सक्रीशन थ्रू व्हाट, थ्रू यूरिन, थ्रू बाइल, थ्रू फिसेस, थ्रू स्वेट या फिर सलाइवा, इससे क्या हो गया, ड्रग का एक्सक्रीशन हो गया। और ये जो 4 स्टेप्स हैं ये किस चीज़ में आती है, फार्माकोकाइनेटिक्स में। अब ये यहाँ पे क्या हुआ, बार बार ये क्या कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है ना, that's why we are taking transportation first and later on we will start with what, absorption. Pay attention to this table, I am about to explain it diagrammatically. Concentrate on this diagram. हम लोग ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट देखेंगे। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट इज वॉट, जहाँ पे एनर्जी और क्या नहीं लगता, कैरियर नहीं लगता, ओके। हियर यू आर सीइंग देयर इज़ नो कैरियर। और 2 पैसिव ट्रांसपोर्ट में 2 कौन से ट्रांसपोर्ट हैं, तो एक तो डिफ्यूजन से होगा या फिर फिल्ट्रेशन से वो ड्रग का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। नाउ डिफ्यूजन से कौन सा ड्रग ट्रांसपोर्ट होगा, जो सेल मेम्ब्रेन में जो सॉल्युबल हो जाएगा वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। सो लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग है वो मोस्टली किससे ट्रांसपोर्ट हो जाता है, डिफ्यूजन से। व्हाट इफ़ देयर इज़ नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग, तो वो किससे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, फिल्ट्रेशन से। सी हियर, हाई कॉन्सेंट्रेशन से ड्रग लो कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है, देयरफॉर देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। हमेशा याद रखना, ओनली एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ देयर जहाँ पे एनर्जी लगेगी। अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं है तो कोई भी ट्रांसपोर्ट में एनर्जी नहीं लगती है, ठीक है। तो ये हो गया पैसिव। पैसिव में 2 कौन से आएंगे, एक तो डिफ्यूजन आएगा, दूसरा फिल्ट्रेशन आएगा ना। उसके सेकेंड पार्ट की तरफ जाते हैं जो है कैरियर मीडिएटेड या फिर स्पेशलाइज्ड। मतलब इस ट्रांसपोर्ट में यू विल नीड एन कैरियर टू ट्रांसपोर्ट योर ड्रग, यू विल नीड एन कैरियर। तो सबसे पहला कैरियर मीडिएटेड कौन सा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मैंने क्या कहा कि सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें क्या लगेगी, एनर्जी। इसका मतलब है चाहे वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, उस चीज़ में एनर्जी नहीं लग रही, एनर्जी नहीं लग रही है, इसका मतलब क्या है कि वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से ड्रग कहा जा रहा है, लो कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है, ओके। दैट इज़ व्हाट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज़। नाम इसका टाइटल क्या है, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। So if it is carrier mediated transfer, it will require an carrier. Why it will require an carrier? Because that drug, it is what, poorly diffusible. If it is purely diffusible, it will require an carrier, but there is no requirement of energy since it is transporting. Just look at this arrow, it is transporting from high concentration to what, low concentration. Now we will come toward what, active transport. Now active transport is what, it will require an energy as well as ये carrier mediated है, इसका मतलब है it will require carrier also. तो लो कॉन्सेंट्रेशन से, जस्ट लुक एट दिस एरो, लो कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा, हाई कॉन्सेंट्रेशन में ट्रांसपोर्ट हो रहा, एट
दी व्हाट मतलब इस चीज़ में क्या लग रही है, एटीपी लग रही है, मतलब इस चीज़ में क्या लग रही है, एनर्जी लग रही है। लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। Okay, that is what primary active transfer. Why it is called primary active transfer? Because ATP is required. If there is a requirement of ATP, that is what primary active transfer. That is from low concentration to high concentration. Active transfer, requirement of energy will be there. Substrate will be there because it is carrier mediated, and energy requirement will be there, and it will be from low concentration to what, high concentration. Now, what is secondary? This is secondary active transfer. Okay. Let me have this. Okay, this is secondary active transfer. What exactly इसको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों कहा गया है, क्योंकि एनर्जी जो है इसके ट्रांसपोर्ट में इट इज़ प्रोवाइडेड बाय इट्स फ्रेंड मॉलिक्यूल. इट्स फ्रेंड मॉलिक्यूल प्रोवाइड एनर्जी, नॉट एन ATP. ओके, दैट्स वाई इट इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसफर. तो इसमें कौन से दो पार्ट आ जाते हैं, एक तो आ जाता है सेम पोर्ट, एक आ जाता है एंटीपोर्ट. व्हाट इज सेम पोर्ट? बोथ द drug molecule along this is cell membrane. Both the drug molecule, they are moving in same direction. Just look at this arrow, they are moving in what, same direction, that is same port. Now both the drug molecule, they moving in what, opposite direction, that is what, antipode. So ये हो गया तुम्हारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट. नाउ कॉन्सेंट्रेट हियर. ड्रग ट्रांसफर का ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है. ओके, ड्रग ट्रांसफर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. एक तो पैसिव हो गया, दूसरा कैरियर मीडिएटेड हो गया, तीसरा पिनोसाइटोसिस हो गया. डायग्रामेटिकली आई हैव एक्सप्लेन बोथ ऑफ देम. ओके, ना पैसिव ट्रांसफर में हमने क्या देखा था, दो चीज़ें देखी थी, या तो वो डिफ्यूजन से होगा या फिर वो फिल्ट्रेशन से होगा. ओके, कैरियर मीडिएटेड या फिर स्पेशलाइज्ड में हमने क्या देखा था, या तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होगा. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने देखा था या तो प्राइमरी ट्रांसपोर्ट होगा या फिर क्या होगा, सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट होगा. प्राइमरी ट्रांसपोर्ट क्यों, क्योंकि एनर्जी डिराइव फ्रॉम व्हाट, ATP. और सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट क्यों, एनर्जी डिराइव फ्रॉम व्हाट, अनदर फ्रेंड मॉलिक्यूल इज प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर दिस ट्रांसपोर्ट. ओके, दैट इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. So hope you got this diagram. Okay, moving forward, I told you there is, in passive there is no carrier and no energy. Here you can see I haven't used any carrier, and high concentration से low concentration में, that is no energy requirement. Now no carrier, and lipid soluble drug dissolve in membrane and is transported through what, soluble. Just concentrate here, lipid soluble drugs जो है that will be dissolved in membrane and that will be transported. Most of the drugs transferred through what, diffusion, because it and it will be what, from high concentration to low concentration. Okay, ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स क्या कर सकते हैं, ये ट्रांसफर कर सकते हैं. ये हो गया तुम्हारा डिफ्यूजन. नाउ मूविंग टूवर्ड व्हाट, फिल्ट्रेशन. Here you can see there is no transporter and no energy requirement. Okay, and even there is no carrier for non lipid soluble या फिर जो लिपिड इनसॉल्युबल हो गया, नॉन लिपिड सॉल्युबल या फिर लिपिड इनसॉल्युबल लिखना है यहाँ पे. लेट मी करेक्ट दिस. ओके, तो ये या तो नॉन लिपिड सॉल्युबल अगर ड्रग कोई हुआ तो वो किस चीज़ से जाएगा, फिल्ट्रेशन से जाएगा. ट्रांसपोर्टेड थ्रू स्पेसेस इन द सेल मेम्ब्रेन. दिस इज द स्पेसेस इन द सेल मेम्ब्रेन जहाँ से वो ड्रग क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. दैट इज बाय मीन ऑफ व्हाट, फिल्ट्रेशन. ये हो गया तुम्हारा पैसिव कंप्लीट. स्टार्टिंग व्हाट, कैरियर मीडिएटेड. कैरियर मीडिएटेड का मतलब है इसके ट्रांसपोर्ट में हमें क्या लगेगा, कैरियर लगेगा. तो हियर यू कैन सी हर जगह हमें क्या लग रहा है, कैरियर लग रहा है. ओके, नाउ कैरियर में मैंने क्या कहा था, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव डिफ्यूजन. ओके, सॉरी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा. ओके, व्हाट एग्जैक्टली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मीन्स, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है. क्यों, क्योंकि हाई एरो, जस्ट लुक एट एरो, हाई कॉन्सेंट्रेशन से ड्रग क्या जा रहा है, लो कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा. अगर कोई पुअरली डिफ्यूजिबल कोई ड्रग होगा तो वो किस चीज़ से जाएगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. ये हो गया तुम्हारा फैसिलिटेटेड. नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ओके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और क्योंकि हेडलाइन जो है वही कैरियर मीडिएटेड है, इसका मतलब है कैरियर तो हर चीज़ में लगेगा ना. नाउ एक्टिव में तुम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब ड्रग विल मूव फ्रॉम व्हाट, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट.
मतलब कहाँ से कहाँ, लो, फ्रॉम लो टू हाई, ओके। लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होगा ना। इसके टू टाइप कौन से, या तो प्राइमरी या फिर सेकेंडरी। प्राइमरी आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो एटीपी जो है वो अगर प्रोवाइड कर रहा है एनर्जी, तो वो क्या हो गया, प्राइमरी हो गया। और सेकेंडरी में क्या है, अनादर फ्रेंड मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी। और सेकेंडरी के दो पार्ट हमने कौन से देखे थे, या तो सिम्पोर्ट या फिर एंटीपोर्ट, मतलब बोथ ड्रग मूविंग इन सेम डायरेक्शन, बोथ ड्रग मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। वी वोंट वेस्ट योर टाइम मोर हियर, ओके। सो दिस इज़ वॉट आई ऑलरेडी टोल्ड यू रिगार्डिंग वॉट ट्रांसपोर्ट। एक और जो रह जाता है ट्रांसपोर्ट, वो रह जाता है पिनोसाइटोसिस। मतलब क्या है, ड्रग जो है वो एनगल्फ हो जाएगा, ड्रग जो है वो एनगल्फ हो जाएगा बाय इन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अगर ये तुम्हारी सेल है और ये तुम्हारा ड्रग है, तो ये क्या कर रहा है, उस ड्रग को एनगल्फ कर ले रहा, तो ये क्या हो जाएगा, पिनोसाइटोसिस। वेसाइकल फॉर्म्ड हो जाएगा और ड्रग इनसाइड द सेल आ जाएगा। तो ये तुम्हारा ड्रग है वो ऐसा वेसाइकल फॉर्म करके वो कहाँ आ जाएगा, इनसाइड द सेल आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस। तो ये यहाँ पे तुम्हारा ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हो जाता है, ओके। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन, द PDF or whatever we have covered up till now, that will be provided in the link, so you can check out.